Hello my dear students, welcome back to my channel Click for Science once again. So in this video I will discuss about components of circulatory system. So start करते हैं. पहले बात करेंगे blood की. Blood is a red colored fluid connective tissue that circulates in the arteries and veins of humans and other vertebrate animals, carrying oxygen to and carbon dioxide from the tissues of the body. आप सब जानते हो ब्लड रेड कलर का होता है और ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है आर्टरीज और वीन्स की हेल्प से ह्यूमन बींग्स एंड अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स में, और हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एंड CO2 को लेके आना इसका स्पेशल रोल होता है. अदर फंक्शंस की बात कर लेते हैं. इट कंटेन्स WBC विच प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस. It transports digested food to various parts of the body. It transports harmful substances like carbon dioxide, urea, uric acid to the excretory system. Let's discuss the components of blood now. Components of blood are plasma, RBC, WBC and platelets. RBC, red blood cells, also called as erythrocytes. WBC, white blood cells, also called as leukocytes. Platelets, also called as thrombocytes. So plasma discuss करते हैं पहले. Plasma कैरी करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, एंड इट कंट्रोल्स द फ्लो एंड कंपोजिशन ऑफ वाटर इन द ब्लड. मेन फंक्शंस की बात कर लेते हैं. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट बैलेंसेस द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड. So these are the functions performed by plasma. You can see here all the components of blood. 55% of blood is plasma, less than 1% leukocytes and platelets, 45% of blood is erythrocytes, means red blood cells. Okay. RBC की बात करते हैं. RBC को हम erythrocytes भी बोलते हैं. They are circular biconcave fluid which is formed in the bone marrow. Blood bone marrow के अंदर form होता है, and they are blood cells are red in color because of the presence of hemoglobin. This is the hemoglobin which gives red color to blood. Okay, and if someone is suffering from scarcity of hemoglobin or lack of hemoglobin, you can say that person can suffer from anemia. It helps to carry oxygen from lungs. WBC की बात कर लेते हैं. WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. दे आर कलरलेस एंड इरेगुलर. आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, इनको स्टेनिंग किया गया, अदरवाइज ये कलरलेस सेल्स होते हैं. एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज. ओके, दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स. एक्सेस इन द नंबर ऑफ WBC लीड्स टू ल्यूकेमिया. ओके, प्लेटलेट्स की बात करते हैं. प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कलरलेस oval cells produced in the bone marrow and dies in spleen. They have very short lifespan. They help in healing of wound. Clotting में help करते हैं basically. अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में. तो okay, heart is a strong hollow muscular organ made up of cardiac muscle. Heart is made up of cardiac muscle which has a property of self contraction. अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ये मसल. स्पेशल टिश्यू बोल सकते हैं इसको. इट इज़ एनक्लोज इन अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन देम इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. अगर मैं सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इसका, तो सपोज हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और हार्ट और इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं इसको. ठीक है. सो ये फ्लूइड क्या करता है बेसिकली, ये हार्ट को मूवमेंट में और एक्सटर्नल शॉक एंड मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है बेसिकली. ओके, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, अपर एंड लोअर चैम्बर्स. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, left auricle, left ventricle. Okay, auricles and ventricles are separated by interauricular septum and auricles are separated by interauricular septum. Likewise, ventricles are separated by interventricular septum. Okay, left auricle and left ventricle are separated by bicuspid valve, and right auricle and right ventricle are separated by tricuspid valve. You can see in this figure now. This is the structure of human heart.
4 chambers. This one, these are the 4 chambers, and this part is the left part. Okay, and this one is the right part, and these two parts are separated by septum here. This is the bicuspid wall, this is the tricuspid wall. And so in the next video I will discuss about the working of human heart. तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे. अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो कि एक्चुअली में इसके पार्ट्स क्या होते हैं, एंड हम इनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, ब्लड वेजल्स की बात करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल्स के अंदर सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर. विद द हेल्प ऑफ दीज वेजल्स ब्लड सर्कुलेट्स इन द होल बॉडी. So blood vessels are a network of pathways through which blood travels throughout the body. Arteries and veins are the two primary types of blood vessels in the circulatory system of the body. Okay, arteries की बात कर लेते हैं. Arteries are blood vessels that transport oxygenated blood from the heart to various parts of the body. Arteries क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जाएंगे. मतलब they moves away from the heart. Okay, and they are thick, elastic and are divided into small network of blood vessels called capillaries. ओनली एक्सेप्शन यहाँ पे एक आर्टरी है एक्सेप्शन में, जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है. अदर आर्टरीज, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ओके, वीन्स की बात कर लेते हैं. वीन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेकर आते हैं वीन्स. इट मीन्स ये CO2 वाला ब्लड कैरी करेंगे. एंड यहाँ पे भी एक्सेप्शन है आपकी पल्मोनरी वीन एंड अम्बिलिकल वीन, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है. ओके, तो यू शुड रिमेंबर द एक्सेप्शन केस इन दीज टू आर्टरीज एंड वीन्स. ओके, यू कैन सी हियर arteries, veins and capillaries. This part basically where artery meets a vein is called as capillary. Okay, here actual transport or actually the exchange of gas takes place. ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं. इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी. आर्टरी की वॉल्स पे जो प्रेशर ब्लड अप्लाई करता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जिसका रेंज जो होता है नॉर्मल रेंज 120 mmHg होता है. ओके, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द वेंट्रिकल इज रिलैक्स. जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तब कौन सा प्रेशर लगता है उन पे, आर्टरीज पे बेसिकली, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. एंड इसका जो रेंज होता है नॉर्मल रेंज दैट इज 80 mmHg. एंड देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं. दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर. यू कैन सी हेयर, आपने देखा होगा ये शॉप्स में डॉक्टर्स के पास. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर. सो क्लास, इस वीडियो में हमने अभी ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बारे में कोई बात नहीं की है. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन. सो वेट फॉर दैट वीडियो. और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा कंटेंट और आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक. सो थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर वीडियोज़ like and subscribe my channel. Thank you.